तो हम आ गए हैं माउफ्लैंग सेक्रेड फॉरेस्ट में। फीस जानते हो कितना है? 550। पता नहीं क्या क्या इंक्लूड कर दिया, लगता है सोना खिलाएगा इधर। ओ ये खासी हेरिटेज वही है क्या? अरे यार वो घर देखा था मैंने वीडियो पे। We will send from here. You will come there. You just go there. While walking, how much time will it take? While walking. Within 1 hour. तो हम आ गए हैं, देखो माउफ्लैंग सेक्रेड फॉरेस्ट। अभी हमारा गाइड आएगा वहाँ से और हमें वहाँ से पिक कर लेगा। पता नहीं गाइड है भी कि नहीं। वी विल आवर पर्सनल गाइड। फील तो मस्त है। ओ मैं खासी हेरिटेज नाम का यही प्लेस गूगल पे डाला हुआ है, खासी हेरिटेज के नाम से। तो मुझे लगा हम लोग वहाँ नहीं जा रहे, बट ये तो यही है क्योंकि मैंने वो घर है ना फोटो में देखा था खासी हेरिटेज के नाम। रहने के लिए बढ़िया लगेगा रात को। अरे कैंपिंग जुको में जब रात को रुका था, क्या बोलूं। उधर हमें जाना है, वो देखो। अरे यार 1x पे ले रहा था, मजा नहीं आ रहा है। अब मजा आएगा ना ब्रो। 1x पे तो आया होगा कि नहीं पता नहीं। मैं बोलने ही वाला था। अरे देख कितना संस्कारी लड़का है, गिरने से पहले ओ ज्ञान चल रहा था। मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। माफ कर दो मुझे। मेरी मम्मी को मत बताना, भाई को मत बताना। घर से चलो चलो। हम जाएंगे अभी सेक्रेट ग्रुप्स के अंदर, पता नहीं क्या मिलेगा। और काश बाइक लेके आया था और पेल देते अंदर बाइक। चोरी करके आएंगे छोटा रास्ता से। Till now, we the local people or tribals people, we believe that there are labasa who protect in this place. Because of any person who try to interfere this place, try to take things from here, try to disobey the rule of the sacred forest where have been put in by those tribals people, they get some punishment from that labasa. So even now that incident things still happen. That's why we don't try to take anything out from this place. Okay. And ancient times, so those tribals people, when they do that Bali Puja over here, they can't stay inside the forest. They have to came from the village from there only. When they came from there, before they are enter, the 3 stones over here and the bench is a place where they get together. They bring the tools and things over there and they do prayers to the Labasa. It's like a permission before they go and do the Bali Puja inside the forest. But in that Bali Puja, no female is allowed to be perform the Bali Puja. It's only for the male. And if the male also allowed, it's only for the one for those who have a beard or either mustache is allowed to be perform the ritual inside here. Okay. But about the starting of the ritual, the age of this forest, till now nobody knows exactly about the age of this forest. Even we also the local people, we are only adjusting that it might be preserving here for more than 1,000 or might be less than that. Okay, but naturally this forest, you see, from there till here, it's look like a boundary, right? Because this forest, for naturally, it just stop in this part only. It doesn't grow trees beyond here. Okay, for 1,000 years, this forest only grow trees only here, and this forest it can grow trees only inside. Only at the back side of the sacred forest. So many things to be explained you inside the forest also, because inside we have plants, we have herbs, we have the sacrifice place and everything. So I'll show you more, explain you more about the things that we have inside the forest. Okay, so we'll go inside. कहने का मतलब इतना चीजें बोला है कि अंदर से कुछ भी लेके नहीं जाना। उनका गोड होता है शायद, तो यहाँ से कुछ लेके जाने से पनिशमेंट मिलता है। उनका जो समथिंग लबासा समथिंग नाम का कोई गोड है, वो उनके मानने के हिसाब से वो मतलब अगर यहाँ से कुछ चोरी करके ले जाते हैं तो, या फिर बिना पूछे भी ले जाते हैं तो अब भी क्या है पनिशमेंट मिलता है। जैसे हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में होता था, लाइक कोई ऑफेंस करते हैं या फिर कोई इलीगल चीज़ें करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट मिलता है, वैसा ही यहाँ से भी होता है। और एक चीज़ बोला कि बहुत सालों से ये फॉरेस्ट बस यहाँ तक ही लिमिटेड है, आगे बढ़ा नहीं है। बस जब भी पेड़ निकल भी रहा है तो वो कहते हैं इन साइड पे निकल रहा है, बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो पेड़ भाई ने बताया ना, वो वहाँ से मेडिसिनल्स वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और बोल रहा है कि उनको अगर ज़रूरत भी पड़ता है तो वो दूसरे वाले फॉरेस्ट से लेते हैं, इस वाले फॉरेस्ट से नहीं निकालते हैं। लेकिन और एक चीज़ बताया कि यहाँ पे अगर कुछ चीज़ खा पी रहे हैं ना तो इनसाइड फॉरेस्ट खा सकते हैं, और मतलब टूरिज़्म को भी अलाउड है कि हम बाहर की चीज़ें तो लाते ही हैं, बैग में तो सामान होगा, बट हम यहाँ पे खा के यहाँ से कोई चीज़ बाहर नहीं ले आ सकते। यहाँ पे अगर जो भी चीज़ें सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें हम अंदर पे खा सकते हैं।
और बाहर नहीं ले जा सकते बस। और चीज़ें तो बहुत सुंदर दिख रहा है, अंदर लोगों ने रास्ता भी बना रखा है। तो अभी गाइड ने बताया कि ये जो है ना एक रुद्राक्ष का पेड़ है। मैंने तो ज़िंदगी में पहली बार देखा है भाई लाइव में कोई रुद्राक्ष का पेड़। और उसने सारे चीज़ें बताया कि कितने टाइप्स के रुद्राक्ष होते हैं। आई थिंक सात टाइप के रुद्राक्ष बताया, नहीं 6, जिसमें से 2 मुखी होगा, 3 मुखी, दिन 4, दिन 5, दिन 6, दिन 7। शायद 2 वाला जो था ना वो था कि अगर जैसे रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा उसके लिए है। फिर 3 वाला के लिए मैं भूल गया, हेल्थ के लिए था। दैन 4th शायद करियर के लिए, ऐसा कुछ बताया। बाकी सारे 7 जो 6 जितने रुद्राक्ष थे सबका इम्पोर्टेंस बताया। और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये भी बताया कि यहाँ के लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं जनरली, बट ये तो जनरली जो हिंदू का माइथोलॉजी है ना उनके हिसाब से है। तो खासी लोग शायद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है उनके लिए, बट ये लोग प्रोटेक्ट करके रखे हैं क्योंकि हमारा जो भी इंडियन ओरिजिन के हैं ना उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है। ये है खासी लोगों का स्पेशल पाइन ट्री। इनसे बनाते बहुत सारे मेडिसिन्स और बहुत सारी चीज़ों का नाम बताया, मैं तो भूल ही जाता हूँ। इतना सारी चीज़ बताया कि कफ वगैरह, साइनस वगैरह सारी चीज़ों में इनका यूज़ होता है। और इनका जो लिप्स है ना, पाइन का लिप्स, यहाँ पे जनरली कोकोनट ट्रीज़ का अमाउंट बहुत कम होता है मेघालय में, तो बोल रहे हैं कि पाइन ट्रीज़ का जो लिप्स है ना उनको यूज़ करके मैट्रेस बनाते हैं ये लोग। बट खुद ही बोल रहे हैं कि जो कोकोनट ट्री का जो फाइबर्स है उनका फाइबर से अच्छा बनता है, बट यहाँ पे अमाउंट कम होता है कोकोनट ट्री का, तो वो पाइन ट्री के लिप्स को ही अटैच करके बनाते हैं मैट्रेसेस को, जो बिस्तर पे यूज़ करते हैं ना वो चीज़। गाइड भैया ने बताया कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो बैठने के लिए जगह था। जो बलि से पहले यहाँ पे लोग अपने आप को प्रिपेयर करते थे, और ये पहले बेंच जैसा था, अभी तो टूट गया थोड़ा सा। और बताया वहाँ पे एक मशरूम भी था, मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगा, वो उसको रेडियम मशरूम के नाम से जानते हैं, बट वो ग्लो नहीं करता। बोला उनका एक वेराइटी जैंतिया हिल्स में मिलता है जो ग्लो करता है। और वो जो सीरिया के बारे में बोला था, देखो यहाँ पे भी वैसा ही है। कहने का मतलब यहाँ पे पहले वो बलि देने से पहले सारी चीज़ों को प्रिपेयर करते थे। जो शिकार वगैरह था उनको शिकार करके लाते थे, और कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेल जिनके पास दाढ़ी और मूंछ होता था वही बलि को परफॉर्म कर सकता था, यानी कि बलि पूजा दे सकता था, अदरवाइज़ वो नहीं दे पाता। तो ये है यू ट्री, इससे ब्रेस्ट कैंसर का मेडिसिन बनता है। और बोले यहाँ पे लोकल लोग इसको यहाँ से जो ऑयल मिलेगा उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर किसी लोकल ने किया तो वो इलीगल होगा। यहाँ पे बलि का प्लेस था, बोला उनको नहीं कैमरे पे नहीं उठाने के लिए, तो मैंने नहीं उठाया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताया कि यहाँ पे बलि वगैरह देने से जैसे कोई प्रॉब्लम आने से उनको अगर जैसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो वो जैसे हम लोग अभी भी क्या करते हैं गॉड से हेल्प मांगते हैं ना, तो वो वही रिचुअल्स में क्या बलि दे के हेल्प मांगते थे। तो मतलब उनको जनरली बलि ही देते थे ताकि कोई जितना भी प्रॉब्लम्स है, जनरली वो वर्षा वगैरह के लिए देते थे। अगर मान लो बारिश नहीं हो रहा है तो लाइक हम लोग प्रे करते हैं भगवान से कि बारिश हो जाए, तो वो सेम चीज़ वही करते थे, बट अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हुए बलि देते थे। और बलि को एक ही दिन में कंप्लीट करना होता था। लाइक अगर सुबह स्टार्ट किया तो सनसेट से पहले उसको कंप्लीट करना होता था। और वहाँ पे कुछ प्लेसेस दिख रहा होगा आपको पीछे में, बट उनको कैप्चर करने से मना किया था। और वहाँ पे कुछ स्टोन भी, बड़ा सा एक स्टोन लगा रखा है, उस स्टोन पे बोल रहा है कि बोले जैसे कि कोई चीज़ को मार्क करना होता है कि हम यहाँ पे कुछ करते थे। उस समय तो कुछ उनका स्क्रिप्ट वगैरह था नहीं मेघालय में, तो जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट को एज ए स्क्रिप्ट डाला। और बहुत सारे लेटर्स उनके मेघालय जो यहाँ के ट्राइब्स थे उनके लेटर्स में, मतलब उनके लैंग्वेज में नहीं होता था। और बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स भी थे, जैसे उन्होंने बताया एक्स वगैरह, ऐसा कुछ लेटर्स है जो उनके ट्राइब्स में नहीं होते हैं। इसलिए मैंने देखा, नोटिस किया कि यहाँ के जो भी नाम है ना चीज़ों का, उसमें एक्स वगैरह लेटर्स होता ही नहीं है। तो शायद यही रीज़न है कि जो उनका लैंग्वेज वैसा है। तो हम अभी बाहर निकल गए हैं फॉरेस्ट से, सेक्रेट फॉरेस्ट से। इसकी स्टोरी ही पूरा अलग है, पूरा ये स्टोरी सीक्रेट है। सो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। उस स्टोरी को जानने के लिए आपको जरूर एक बार आना चाहिए। यस, एक बार विजिट करो। वैसे हाफ ट्रैक ही हमने लिया था, लेकिन आप फुल लेना। नहीं फुल में कुछ नहीं है खास।